Yes, hello everyone. How are you all? I hope you all are good. So this is Kanchan ma'am back here again with the another session of temperature. All right. So I welcome you all to the Swiftland also. है ना ये तो मैम को बोलना ही है ना. All right. So basically, as you can see on the screen, what is Swiftland all about? So Swiftland is providing 100% live and interactive classes, personalized attention batch with maximum 6 students. A dedicated academic mentor team is there, which is on hold tracking and working on your progress. Syllabus, CBSE, ICSE, State Board, all the syllabus are covered here. Now, when I talk about some more key features, it is providing you the detailed progress report, how you are doing in class, in assessments, in homeworks, and all in that. So we will be providing a detailed progress way of how you are doing actually, how is your performance. Okay, so when I talk about test, so once the concept is over, once you will be in a swift learner, you will be automatically we will be providing you lots and lots of practice tests. It's up to you how much practice you want to do. Okay, so there are unlimited things, MCQs and subjective also. Now when I talk about swift and academic test series, this is very important. Once you will be in swift learn, you will become a swift learner. Okay, you will become a swift learner. So at the same time, with this test series, you will be competing with all the other students in the Swiftland of your grade. ठीक है, अगर आपको फायदा क्या होगा, what will be the benefit, आपको लीडर बोर्ड पे अपना पोजीशन पता चलेगा कि where you are actually. Okay, and बेसिकली स्कोर भी पता चलेंगे तो उससे आपको पता चल सकता है कि यस मुझे अभी कितना वर्कआउट करने की ज़रूरत है इफ़ आई वांट टू बी एट द टॉप. ओके, सो इन सब के लिए क्या करना है भाई, एक ट्रायल बुक करके देख सकते हैं. दैट इज एब्सोल्युटली फ्री. फॉर दैट यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और सिंपली यू कैन गो टू द गूगल बाबा. Okay, so those who are new to the channel, you can subscribe us, press the bell icon so that you will never miss any update. ओके, सो टेम्परेचर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज टेम्परेचर. जल्दी से बता दीजिए क्या होता है टेम्परेचर. जल्दी से बता दो भाई. यस, टेम्परेचर इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. कितना गर्म है कोई भी चीज़ या कितनी ठंडी है, कितना टेम्परेचर बाहर हो रहा है, ऐसे ही बोलते हैं ना. तो कितनी गर्मी हो रही है, तो गर्मी से बेटर आप बोलेंगे ना कितना टेम्परेचर हो रहा है. सो scales, units, Kelvin scale, conversions and yes, conversion between different scales आज हम discuss करने वाले हैं. Okay, so types of thermometer scale that I already told you, Celsius होता है, Kelvin होता है, Fahrenheit होता है. ठीक है, इसमें जो मेन होता है Kelvin, this is called the SI unit. हायर क्लासेस में जाके जब भी आप टेम्परेचर के बारे में स्टडी करेंगे इन वेरी डीप अबाउट इन केमिस्ट्री, सो वहाँ पे आप मोस्ट ऑफ द टाइम केल्विन ही यूज कर रहे होंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप बॉडी टेम्परेचर के बारे में बोलते हैं तो उस टाइम हम फ़ारेनहाइट यूज़ कर रहे होते हैं और डिग्री सेल्सियस. जब आप ये डे टू डे का टेम्परेचर बोलते हैं तो आप सेल्सियस यूज़ कर रहे होते हैं. ओके, सो एवरी यूनिट, एवरी जो हर एक यूनिट है, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, आपने कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर करी होगी एक्सेप्ट केल्विन, क्योंकि केल्विन इज अ लिटिल बिट मोर इन द केमिस्ट्री. Okay, so what is Kelvin scale? Basically it is a scale which is used to measure, which denote actually the magnitude of the temperature. कितना temperature है, the Kelvin is the SI base, मतलब standard है आपका. okay, temperature and it is suggested by the international system of unit. that is why इसको SI बोला गया. तो SI का मतलब है कि all over international system है, international system में ये यूज किया जाता है. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाई वी टेक इंटरनेशनल और एसआई यूनिट्स, ताकि सब जगह मेजरमेंट इक्वल तरीके से हो. तो वहाँ किसी भी जगह पे ऑल ओवर अगर आप वर्ल्ड की बात करें तो किसी भी जगह पे जो केल्विन है एसआई यूनिट उसका क्या होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है. ओके, लॉर्ड केल्विन थे जिन्होंने पहली बार वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो दिया था ऑन द एयर थर्मोमीटर विच वाज टाइम दैट टाइम वाज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस. तो व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? बेसिकली एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है जिसके नीचे अभी लोअर टेम्परेचर हम बोल ही नहीं सकते कि एग्जिस्ट करता है. आपकी अगर देखिए हायर क्लासेस में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ पड़ेगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एब्सोल्यूट जीरो, हम अगर जीरो की बात करें तो जीरो के नीचे तो टेम्परेचर जाता है ना, नेगेटिव टेम्परेचर होता है. लेकिन इसके नेगेटिव -273 डिग्री सेल्सियस के नेगेटिव, तो ये एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू है किसकी, टेम्परेचर की. तो मतलब एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब ज़ीरो नहीं है, एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब है वो टेम्परेचर जहाँ से आप नीचे
टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता, आप ये कह सकते हैं अभी दिस टाइम. So Kelvin scale is the most commonly used temperature scale in the science. It is absolute. It is an absolute temperature scale. Absolute temperature scale है defined to have 0 Kelvin. 0 Kelvin होती है इसकी वैल्यू at the lowest possible temperature. और lowest possible temperature अभी क्या है बताया मैंने आपको, -273 डिग्री सेल्सियस. तो जो -273 डिग्री सेल्सियस है वो 0 Kelvin पे है. इसका वैल्यू क्या है, 0 केल्विन केल्विन स्केल पर. ओके, हायर क्लासेस में डेफिनेटली आप बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होता है. ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना रखिए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब है 0 केल्विन स्केल पर, और केल्विन स्केल का मतलब डिग्री सेल्सियस में कितना है, -273 डिग्री सेल्सियस. अब सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल देख लेते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों स्केल्स के मेजरमेंट. द सेल्सियस स्केल हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट. देखिए सेल्सियस स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कोई भी चीज़ फ्रीज करना 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट करती है और बॉईल करना 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट करती है. बट फ़ारेनहाइट में ऐसा नहीं होता. फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट, बात एक ही है बच्चों, चाहे आप 32 फ़ारेनहाइट बोलो या आप 0 डिग्री सेल्सियस बोलो, बात एक ही है. स्केल डिफरेंट है, स्केल डिफरेंट है. और बॉइलिंग 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे. ओके, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फ्रीज एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बॉइलिंग. फ़ारेनहाइट की बात हो रही है, और डिग्री सेल्सियस आपको पता है 0 एंड 100. नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट. इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है तो कहते हैं ना फीवर है. कहते हैं ना फीवर कब आता है, कैसे चेक करते हैं फीवर. आपके पास थर्मोमीटर होता है, डिजिटल थर्मोमीटर. उस पे जहाँ आया 98.9 फ़ारेनहाइट, आप उसको ना डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते, करके देखिएगा, बड़ा मजा आएगा. ओके, तो 98.6 से अगर थोड़ा सा भी, अगर 0.1 भी आपका टेम्परेचर अगर थोड़ा सा राइज हो जाता है तो आपकी बॉडी थोड़ा सा मतलब नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हीट हो जाता है. ऑल राइट, ऐसे तो कहते हैं कि 100 जब आता है तभी आपको कह सकते हैं कि आपकी बॉडी में फीवर है. बट अब ज़्यादा लोग कॉन्शियस हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड ऑल. तो अगर आप 1 डिग्री भी बढ़ता है तो हम कह सकते हैं या हमारी आपकी बॉडी कुछ एक्स्ट्रा काम कर रही है, इसका मतलब है कुछ एक्स्ट्रा बॉडी में इंटरनली कुछ एक्स्ट्रा काम हो रहा है जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है. अब टेम्परेचर देख लेते हैं. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टेम्परेचर को हम डिग्री में लेते हैं. ठीक है, द टेम्परेचर स्केल्स दैट वी यूज हेयर आर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. तो उसको हम ये ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं. तो ये मतलब है डिग्री. इसका मतलब क्या है बच्चों, डिग्री है. इसका मतलब क्या है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, और केल्विन को तो हम केल्विन बोलते हैं, सिर्फ की. So most interesting fact about the temperature is that we can convert is this into the another scale also. Yes, देखिए 212 फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री सेल्सियस एंड 373 केल्विन, सब एक ही बात है ना. जैसे हम बोलते हैं कि 1 किलोमीटर हो या 1000 मीटर हो, तो बात तो दोनों की एक ही है. सिमिलरली यहाँ भी बात कर रहे हैं, बस किलोमीटर ग्राम और मतलब मीटर ग्राम और लीटर में क्या होता है, 1000 और 10 का रिलेशन होता है. यहाँ 1000 और 10 का रिलेशन नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलेशन लर्न करना पड़ेगा. ओके, तो SI यूनिट इज एक्चुअली केल्विन, नॉट सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, एंड इज डिनोटेड इन के. तो अगर आपको पास सेल्सियस है और आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, +273. जो भी आपके पास सेल्सियस में टेम्परेचर है अगर आप उसमें +273 कर देंगे तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, convert a degree Celsius into the Kelvin, you have to add 273. That's it. अब क्यों ऐड करते हैं ये आप 2-3 साल के बाद जब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ना इजीली पढ़ लेंगे. ओके, और बहुत और डिटेल में पढ़ेंगे तो 11th-12th में आके पढ़ लेंगे. ओके, तो चलिए, अब 32 डिग्री सेल्सियस है, इससे मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना. तो व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू द केल्विन, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है गाइस. सो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट ऐड 273, दैट्स इट, यू विल गेट योर आंसर. ओके, सो रिमेंबर, ये छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ते हैं अगर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं ना. ऑनलाइन क्लासेस का मतलब या यूट्यूब में पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बस ऐसे बैठा और अच्छा समझ में आ रहा है. Nothing to do like that. What you have to do, you have to take a paper and a pen and then you have to write these things. Okay? चलिए 27 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे. ठीक है, एडिशन तो करना आता है ना, बिल्कुल जी आता है. यस, सो व्हेन यू विल बी एडिंग आपको 300 केल्विन
टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक है, तो रिमेंबर कभी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको +273 करना है। दैट्स इट। ओके, नाउ फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, बट फिर भी देखिए व्हेन बॉइल वाटर बॉइल्स तो उसमें जो आप टेम्परेचर चेक करेंगे वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है या 212 इन फ़ारेनहाइट होता है। आप इसको केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो 373 केल्विन आएगा। When water freezes, it measures in zero. जब फ्रीज होता है, फ्रीज होने का मतलब बिल्कुल ठंडा नहीं, वो जमना शुरू हो जाए। यस, वो जमना शुरू हो जाए। जमने का मतलब पता है ना, मतलब बिल्कुल, तो आप फ्रीज बोले या जमना बोले, ओके। जमना शुरू हो जाए, दैट इज कॉल्ड 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसका 100 और इसका 212, इसका 0 मतलब इसका 32। ओके, तो चलिए, द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर इन द स्केल आर 273.15 केल्विन एंड 373.15 केल्विन respectively. Unlike other temperature scale, the Kelvin scale has and is an absolute scale. Absolute scale का मतलब आपको पता है ना, राइट? तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आप यहाँ पे 100 देख सकते हैं और इसका 212 है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे 0 है और यहाँ पे इसका क्या है, इसके लिए 32 होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? अब डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, जब आपने सेल्सियस में डिफरेंस निकाला तो ये 100 आया बॉइलिंग और फ्रीजिंग का, और इसमें जो आपने निकाला वो 180 आया। तो क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस एंड इतने फ़ारेनहाइट पे होता है। मतलब डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस इज 100 एंड फ़ारेनहाइट में डिफरेंस इज 180। ये आपको याद रखना है। अब आप यहाँ पे देखिए, इजीली देख सकते हैं। मैंने आपको एब्सोल्यूट जीरो की टेम्परेचर की वैल्यू बताई थी। एब्सोल्यूट जीरो एक्चुअली ये अब अलग तरीके का थर्मोमीटर है, ये हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं। ऑलराइट, ये देखिए, ये एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है -273 डिग्री सेल्सियस एंड -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके नीचे टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता है अभी के लिए। अभी के लिए अगर मैं आपको बहुत शॉर्टर वे में इसको समझाना चाहूँ, ऑलराइट, यहाँ पे देखिए, ये जो ये वाला टेम्परेचर, यहाँ पे ड्राई आइस होती है, सॉलिड CO2, यहाँ पे वो वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाता है। वाटर फ्रीजेस, यहाँ पे वाटर फ्रीज होता है और यहाँ पे वाटर बॉयल होता है। ये देखिए, यहाँ पे लिक्विड एयर है, यहाँ पे आप एयर को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं इस टेम्परेचर में। तो उससे भी टेम्परेचर कम होता है, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। ओके, तो बस आपको इतना याद रखना है कि ये टेम्परेचर है, देखिए 212 और ये इसका लोवेस्ट है और ये मैक्स और ये, ओके। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो याद रखना। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब जीरो नहीं है, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है वो मिनिमम टेम्परेचर जो एग्जिस्ट करता है। तो चलिए, 57.8 डिग्री सेल्सियस या 136 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द हॉटेस्ट टेम्परेचर, जो कहाँ पे किया गया था रिकॉर्ड, 13 सितंबर 1922 में लीबिया में, अल्जिया में ये रिकॉर्ड किया गया था। देखो कितना ज़्यादा, यहाँ पे तो टेम्परेचर 40 तक आते आते ही, मतलब 40 भी नहीं आता है तो मतलब बहुत बहुत गर्मी हो जाती है ना, मई जून, राइट। ओके, तो टेम्परेचर कन्वर्जन बहुत इजी है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली देख लीजिए। अगर आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना है, अब ये कहाँ से आया, ये इसका आप जो डेरिवेशन है उसको करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सिंपल याद रखिए, जब भी हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो आप जो आपके पास सेल्सियस है ये वाला आप याद रखिए, ये तो स्टेप्स हैं, क्योंकि आपको पता है 180 और 100 का होता है और 32 का डिफरेंस होता है, आप इससे ऐसे भी याद रख सकते हैं। बट पता है ना, इसमें 100 और इसमें 180 और +32, क्योंकि 32 का डिफरेंस होता है 0 और 32 के बीच में। ऑलराइट, तो वैसे आप एक सिंपल सा फंडा याद रखिए कि सेल्सियस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 9/5 से और फिर आप उसमें ऐड कर दीजिए 32, तो आपको जो मिलेगा वो फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा। ओके, व्हाट यू हैव टू डू, रिमेंबर, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई 9/5। अब यहाँ पे बोल रही हूँ मैम, यहाँ पे 180/100 लिखा हुआ है, तो बच्चों जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 9/5 ही आ जाएगा। 0 से 0, 2 9 से 18, 2 5 से 10, 9/5 वो वैसे ही आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली इसको लर्न कर सकते हैं कि when we have to convert a degree Celsius into Fahrenheit, we have to first multiply that Fahrenheit, the degree Celsius by 9/5 and then we have to add 30। अब देखिए, टेम्परेचर टू स्केल स्टार्टेड डिफरेंट, हम क्यों देखिए डिफरेंट डिफरेंट से
ये करें ना, ये देखिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इसका ये इसका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये इसका। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 100, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 180, तो वही हो रहा है 180/100। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है +32, तो एक्चुअली में हम यही कर रहे हैं। ओके, ठीक है, चलिए। नाउ 10 डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो वेरी सिंपल, क्या दिक्कत है, कर लीजिए। ये देखिए, ओके लेट मी टेक दिस इज इक्वल टू, तो कितना डिग्री सेल्सियस है 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 को आप यहाँ पे रख दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32। बॉड मास में आपने सीखा ही है इस साल, यस। पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई देन एडिशन, तो मल्टीप्लाई करने के लिए 5 2 ज़ 10, दैट इज 2 9 ज़ 18 प्लस 32, कितना हो जाएगा आपके पास 30 40 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, इजी है कि नहीं है, ठीक है, बस फॉर्मूला लर्न करना है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला बच्चों, फॉर्मूला है 9/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन 32 ऐड कर दीजिए, वेरी सिंपल। नाउ फ़ारेनहाइट से अब सेल्सियस में करना है, उल्टा उल्टा करना है, तो उल्टा करने के लिए आपको वाइस वर्सा बेसिकली प्रोसेस कॉल्ड, तो आप पहले 32 को माइनस करेंगे, फिर 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, याद रखिए। जब फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो पहले आप फ़ारेनहाइट में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन आप 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर देखिए अब हायर क्लासेस में जाएगी तो आप इक्वेशन सॉल्व करके आपको सिर्फ वन फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत है, बट नाउ यू डोंट सॉल्व द इक्वेशंस। होपफुली आप नेक्स्ट ईयर जाके जब आप 6th में जाएंगे तो आप इक्वेशन सॉल्व करना सीख जाएंगे, दैट टाइम यू हैव टू लर्न ओनली सिंगल फॉर्मूला। बट अभी आपको याद करना पड़ेगा कि उसके लिए आपको पहले 32 को माइनस करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 5/9 से। दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट इट। ओके, तो कन्वर्ट कर सकते हैं 72, तो पहले इसमें से 32 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 72 में से 32 माइनस कर दीजिए, फिर 5/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 77 था, तो 77 में से 32 गया 45, 45 को आपने 5/9 से किया, 9 की टेबल में 5 5 टाइम्स आता है, एंड दैट्स बिकम 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो दोनों आपको याद रखने हैं, कैसे हम फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में करते हैं और कैसे हम डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करते हैं। द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन 4 डिफरेंट कंट्रीज आर लिस्टेड बिलो, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पर है बताइए, 127 114, तो सबसे ज़्यादा तो 134 है, तो वो कहाँ पर है, यस 136 है, सॉरी, श्रीलंका। ओके, तो टेम्परेचर देखिए, जो जितना बड़ा नंबर है उतना ही ज्यादा उसका टेम्परेचर हो गया, दैट से टेम्परेचर याद रखिए। जब हाईएस्ट होता है, जब ऊपर ऊपर जाता है, मीन्स सब गर्मी होती है, ये तो पता ही होगा ना, मैम ने बताया नहीं आपको, अच्छा ठीक है। जैसे टेम्परेचर ऊपर जाता है तो हॉटनेस बढ़ती है, और जैसे टेम्परेचर नीचे आता है तो कोल्डनेस बढ़ती है, ठीक है। इसीलिए जहाँ पे बर्फ या स्नोफॉल होता है, वी हैव नेगेटिव वहाँ पे टेम्परेचर आ जाता है। अच्छा, टेम्परेचर इंडिया में क्या होगा डिग्री सेल्सियस में, यस, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ इंडिया इन डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या कर लीजिए, सॉरी, आपको पता होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट में 127 पॉइंट डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसको अगर आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सेल्सियस से हम फ़ारेनहाइट से हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो -32, पहले आप -32 करेंगे, फिर आप 5/9 से करेंगे। अब बच्चों अगर आप मुझे ये बताइए 127.6 से आपको 32 माइनस करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब बच्चे बड़े अलग अलग तरीके का करते हैं, कोई यहाँ 32 लिख देगा, कोई वहाँ 32 लिख देगा, है ना, बिल्कुल नहीं। अगर कंफ्यूजन होता है, दिस इज फॉर देम जिनको जिनको आता है, आप बिल्कुल सुपर हीरो है। नहीं आता है, लेट मी टेल यू, आप भी सुपर हीरो बन जाएंगे। आप जिसमें पॉइंट नहीं है उसको के उसके पीछे भी .0 लगा दीजिए, जिसमें पॉइंट नहीं है आप उसके पीछे भी 0 पॉइंट लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा 32.0। अब आप इजीली इसको सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अगर आपके पास दोनों नंबर्स में डेसिमल्स अवेलेबल नहीं है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक देम इन द डेसिमल नंबर।
अब यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर 7 AM पे इतना था, 61 डिग्री फ़ारेनहाइट था, और 11 AM पे 38 डिग्री फ़ारेनहाइट था। डिफरेंस पूछा है, आप इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, आपका डिफरेंस निकल जाएगा, 23 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल रहा है। ऑलराइट, सो नाउ यू हैव टू कन्वर्ट, ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको केल्विन और सेल्सियस दोनों में करना है। देखिए फ़ारेनहाइट से आप डायरेक्ट केल्विन में नहीं कर सकते, क्योंकि हमने डिग्री सेल्सियस और केल्विन का पढ़ा है कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तब आके वो केल्विन पे आता है। तो आप एक काम करिए, आप पहले 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले -32 करना है, और फिर क्या करना है, 5/9 से मल्टीप्लाई। तो पहले आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 45 मल्टीप्लाई बाय 5/9, दैट इज 9 5 45, और आपके पास आ गया 25 डिग्री सेल्सियस। आइए, आपको सिंप्लीफाई करना आता है ना, वेरी गुड, ठीक है, आना चाहिए सिंप्लीफाई का। नहीं आता तो प्लीज एक ड्रॉप कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, एक छोटा सा कमेंट, मैम काइंडली टेक अ सेशन ऑफ सिंप्लीफिकेशन, देन आई विल डू दैट। ओके, 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब इस डिग्री सेल्सियस में हो गया, अब आप इसको केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। केल्विन में करने के लिए कुछ नहीं करना है, 25 प्लस 273 करना है, आपका जो भी टेम्परेचर आएगा वो केल्विन में आ जाएगा। Okay, so this is how you have to convert that into the different forms. So what we have learned today, scales, units, Kelvin, conversion from one unit to another, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। तो याद रखिए, there are three major units, Celsius, Kelvin and Fahrenheit. Celsius आप जो डे टू डे बोलते हैं कि 30 डिग्री टेम्परेचर चला गया या फ्रीज हो गया, तो वो 0 पे फ्रीज होगा, 100 पे बॉयल होगा, और जो बीच के टेम्परेचर होता है दैट इज कंसिडर्ड। उसके बाद अगर फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, फ़ारेनहाइट हम बेसिकली थर्मोमीटर्स में यूज़ करते हैं, जहाँ पे 9 आप बोलते हैं बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट है, जो वो थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाता है, आप कहते हैं हमें फीवर आ गया, फीवर आ गया, ऑलराइट, तो वो फ़ारेनहाइट में होता है। आप उसको डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने आपको कन्वर्जन्स बता दिया है। केल्विन, केल्विन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्केल, जो हम केमिस्ट्री में, आप हायर क्लासेस में जाके जब साइंस में कभी भी टेम्परेचर की बात करेंगे, वहाँ पे टेम्परेचर ना डिग्री सेल्सियस होगा और ना ही आपके पास फ़ारेनहाइट होगा, बट इट विल बी इन द केल्विन, बिकॉज केल्विन में बहुत लॉन्ग रेंज है। केल्विन में आप -273 डिग्री सेल्सियस तक यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। राइट, सो आई होप आप सबको समझ में आ गया है। सो इट्स टाइम टू गो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन द सेशन। ओके, so those who are new to the channel, you can subscribe us, press the bell icon so that you will never miss any update, hit the like button, okay, कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है, और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप अपने क्लासमेट्स को भी बता सकते हैं। Alright, so till to the next session, hopefully we will meet soon. So till to the next session, bye bye, take care, कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज मैथ्स में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। ये सब अगर आपको देख के लग रहा है बहुत ईजी है, बट करने बैठेंगे ना बिना फॉर्मूल, बिना कुछ हेल्प के, तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो बेटर है कि वीडियो देखते देखते आप इस सबको नोट डाउन भी करेंगे, इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, सो टिल टू द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।